resources at present time. Okay. Okay. Please mute yourself now, everyone. Now, today we will look the classification of resources, and this classification is based on the distribution. Okay. Yes, sir. Can anyone tell me on the base of distribution how many types of resources? Yes, be fast. Make the session interactive. Okay. Can anyone tell me on the base of distribution how many types of resources are there? No? Okay. No, sir. No, I will tell you. Okay. On the base of distribution, there are two types of resources. The first one is called ubiquitous resources. What it is called? Ubiquitous. Ubiquitous resources. And the second one is called localized resources. Is this clear? On the base of distribution, there are two types of resources. First one is called ubiquitous resources, and the second one is called localized resources. Is this clear? Now, what do you mean by ubiquitous? Ubiquitous are those resources which are present everywhere. Present everywhere. Is this clear? Can anyone tell me the example of ubiquitous resources or the resources which is present everywhere? Can anyone tell me? Air. Air, yes, 100%. Air. Tree, Yes, water, air. Air. sir, tree. Air, sunlight. Okay. These are the example of ubiquitous resources because these are the resources. The water. Yes, these are the resources. No, water, the availability of water is very less in the desert. Okay. Sir, tree. Tree is also less in desert. Okay. Air is the best example of the ubiquitous resources. Sunlight is the best example of the ubiquitous resources because these. But sir, sunlight पोल पे ज़्यादा नहीं ना जाता. Where? पोल पे 6 month. जब भी आप पोल पे बात करो तो 6 month डे होते हैं और 6 month नाइट होते हैं. ठीक है. और वहां पर तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करता. ठीक है. Is this clear? So ubiquitous resources are those resources which are present everywhere. Is this clear? The best example of ubiquitous resources is air, sunlight. Anyone have any problem? Yes or no? No, sir. No, sir. Okay. No, sir. Next one is the localized resources. This is the resources which are present in the specified area. Okay. Present in the specified area. So this type of resources is called localized area or present in a particular area. ठीक है. जो भी resources किसी खास जगह पे पाए जाते हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Localized resources. Is this clear? Example: coal in the Chota Nagpur region. Is this clear? Is the example of localized resources. Anyone have any doubt? No, sir. So we have completed the classification of resources on the base of distribution. On the base of distribution, there are two types of resources. The first one is called ubiquitous resources, and the second one is called localized resources. Okay.
Ubiquitous resources are those resources which are present everywhere. The example of the ubiquitous resources is air, sunlight. On the other hand, localized resources are those resources which are present in the specified area, okay, in a particular area, okay, and their example is coal that is present in the Chota Nagpur region. Is this clear? Yes or no? Is this clear to all? When I ask you something, please answer. Okay? Yes. Yes, sir. Okay. Okay. Shall I erase the screen? Yes or no? Shall I erase the screen? Yes? Yes, sir. Yes. Okay. सर देखो बेटा, अभी तक हम लोग व्हाट इज रिसोर्सेज पढ़े और जो रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन है जो डिफरेंट बेस पे किया गया है उसको पढ़े, नहीं जिसमें हम लोग ऑन द बेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े, ऑन द बेस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट पढ़े और ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन पढ़े, ऑन द बेस ऑफ ओनरशिप पढ़े। ठीक है, ये डिफरेंट बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है उसको अभी तक हमने पढ़ा। अब एक चीज बताओ, कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट रिसोर्सेज? मानव, नो सर कैन यू इमेजिन द लाइफ विदाउट रिसोर्सेज? थोड़ा इमेजिन करके देखो कि अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं होता तो आपका लाइफ कैसा होता। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ रही है दिलकाश? यस सर। तो देखो बेटा, अगर रिसोर्सेस नहीं होता तो हमारा लाइफ कैसा होता, नहीं तो इमेजिन करने से एक बहुत डरावना सा सिचुएशन हमारे सामने में आता है। रिसोर्सेस नहीं होता, लाइफ नहीं होते। यस और नो? आज हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, स्टडी कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में ऐसा रिसोर्सेस अवेलेबल है जो हमें और आपको घर बैठे ही एक दूसरे से जुड़ने का मौका देता है। यस और नो? तो इस रिसोर्सेस का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जरूरी क्या है कि जिस रिसोर्सेस के बारे में हम लोग पढ़े हैं उस रिसोर्सेस को कंजर्व भी किया जाए, उसका वेस्ट नहीं किया जाए। यस और नो? रिसोर्सेस को वेस्ट नहीं किया जाए। और वेस्ट करने का मतलब क्या है? आप अपने नीड से ज्यादा उसको यूज कर रहे हो। और व्हेन आई से कि आप अपने नीड से ज्यादा उस रिसोर्सेस को यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि आप उस रिसोर्सेस को आप अपने ग्रीड को फुलफिल करने के लिए यूज कर रहे हो। इसलिए तो महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि देयर इज इनफ रिसोर्सेस टू फुलफिल योर नीड्स। ओके, आपके नीड्स को फुलफिल करने के लिए नेचर के पास इनफ रिसोर्सेस हैं, लेकिन आपके ग्रीड को फुलफिल करने के लिए नेचर के पास रिसोर्सेस नहीं है। इज दिस क्लियर? यस और नो? प्लीज टेल मी, बी फास्ट। यस। तो इस रिसोर्सेस को कंजर्व करने की बहुत जरूरत है, नहीं तो कंजर्व करने के ही टर्म में यस सर। ठीक है, आपके बुक में एक टॉपिक दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यस ठीक है। अब देखो बेटा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है? सबसे पहले बात एक चीज देखो कि आप पढ़ते होंगे कि कोई कंट्री डेवलप्ड है, ठीक है, कोई अंडर डेवलप है,
और कोई डेवलपिंग है। ये चीज आप पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? हाँ, यस सर। तो अब देखो ये जो क्लासिफिकेशन है कंट्री का, ये जो क्लासिफिकेशन है कंट्री का ऑन द, जो कि डेवलपमेंट, अंडर डेवलप या डेवलपिंग में, ये किसके बेस पे है? ये बेस है यूज ऑफ रिसोर्सेस के बेस पे। ठीक है, कि कौन सा कंट्री कितना ज्यादा अपने यहां जो उसके यहां प्रेजेंट रिसोर्सेस है उसको यूज किया है। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे कि जो रिसोर्सेस का यूज है वही डिसाइड करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। यस और नो? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ठीक है, कैन यू हियर मी? एम आई ऑडिबल? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको क्या बताया कि कोई भी कंट्री कितना डेवलप है, ठीक है, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना हो रहा है, ये कौन डिसाइड करता है? यूज ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है, अब जब यूज ऑफ रिसोर्सेस ये डिसाइड करता है कि कोई कंट्री का वहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है, तो एक चीज बताओ, मैं दूसरी ओर बात कर रहा हूं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, मींस रिसोर्सेस को बचाओ। अगर आप रिसोर्सेस को कंजर्व करोगे, क्या उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी अफेक्ट नहीं होगा? यस और नो? अगर आप रिसोर्सेस को सेव कर रहे हो, मींस यू आर नॉट यूजिंग रिसोर्सेस टू फुलफिल योर नीड्स, ठीक है, तो क्या होगा? आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन करेगा। यस और नो? यस सर। यस सर। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन करेगा। अब इन प्रेजेंट सिचुएशन कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन ये चाहेगा कि उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्लाइन करे? नो सर। नो सर। तो क्या होगा? कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाएगा। यस और नो? कोई एक बीच का रास्ता निकाला जाए, किसके बीच में? कंजर्वेशन, यस सर। कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में। क्योंकि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? रिसोर्सेस पे। और कंजर्वेशन क्या बोलता है कि यूज ऑफ रिसोर्सेस को कंट्रोल करो, ठीक है, बचाओ। कंजर्वेशन मीन्स तो यही होता है कि प्रोटेक्ट द रिसोर्सेस, ओके। और डेवलपमेंट क्या होता है? व्हेन आई से डेवलपमेंट, इट इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगा? जितना ज्यादा आप रिसोर्सेस को यूज करो। तो एक बोलता है एक्सट्रीम डेवलपमेंट की बात करता है, दूसरा कंजर्वेशन की बात करता है। तो दोनों के बीच का रास्ता क्या होगा? इसके लिए एक वर्ड कॉइन किया गया, उसको बोला था सब्सटेबल डेवलपमेंट। क्या बोला था बेटा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस, उसको बोला था सब्सटेबल डेवलपमेंट। इट इज क्लियर? अब देखो सब्सटेबल डेवलपमेंट होता क्या है। हमने तो ये चीज देखा, कंजर्वेशन और डेवलपमेंट, इस दोनों के बीच का जो रास्ता है वो हमारे लिए क्या था? सब्सटेबल डेवलपमेंट का। ठीक है, नाउ देयर इज क्वेश्चन इन आवर माइंड
that what do you mean by sustainable development? ओके तो इस वर्ड को जानने के लिए हम लोग थोड़ा पास्ट में चलेंगे, और पास्ट में कितना, 1987 में। इट इज क्लियर? 1987 में एक कमिटी फॉर्म किया गया था। क्या किया गया था बेटा? एक कमिटी को फॉर्म किया गया था, और उस कमिटी का नाम था ब्रुस्टलैंड कमिटी। क्या नाम था बेटा? ब्रुस्टलैंड कमीशन। क्या नाम था? ब्रुस्टलैंड कमिटी। ब्रुस्टलैंड कमीशन। ठीक है, ये एक कमिटी था। अब देखो, इस कमिटी का नाम ब्रुस्टलैंड कमिटी क्यों पड़ा? नाम से क्लियर है कि जो चेयरमैन था इस कमिटी का, उसका नाम क्या था? ब्रुस्टलैंड। I said in 1987 a committee was formed on the name of Brustland, who is the chairman of that committee. Okay, and the name of that committee was called the Brustland Commission. Is this clear? Yes or no? Is this clear to all? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, sir. this committee was formed by United Nations World Commission on Economic Development. Okay, United Nations World Commission on Economic Development. This is an international organization, and this committee was formed by this organization in 1987, and the chairman of Brustland committee was Brustland. Is this clear? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. In 1987, this committee submit their report. Okay, when this committee submit their report? In 1987. Okay, and in that report, this committee defined the term sustainable development. It is clear? What is the meaning of sustainable development? These terms, these words was defined by the Brustland committee in his report that was submitted in 1987. It is clear? Yes, sir. Okay. Now we will look what is the definition of sustainable development. According to the Brustland report, sustainable development is defined as the development, okay, the development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. It is clear? As per the Brustland committee report, the word sustainable development is defined as the development that meets the needs of present without compromising
the ability of future generation to meet their own needs. It is clear? अगर आप इस पूरे डिफिनीशन को आसान भाषा में समझने का प्रयास करो तो इस डिफिनीशन के द्वारा क्या कहा जा रहा था कि हम लोगों ने क्या देखा कि प्रेजेंट क्या चाह रहा है, डेवलपमेंट, ठीक है। इफ यू कंप्रोमाइज विद द डेवलपमेंट देन यू कैन सेव द रिसोर्सेस, देन यू कैन कंजर्व द रिसोर्सेस। इट इज क्लियर और नॉट? अगर आप अपने डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज कर सकते हो, अगर प्रेजेंट जनरेशन अगर अपने डेवलपमेंट से कंप्रोमाइज कर सकता है तभी जाके जो हमारा प्रेजेंट जनरेशन है वो रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकता है। ओके, लेकिन ये बताओ क्या कोई अपने अपने प्रेजेंट में डेवलपमेंट को, जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है उसको डिक्रीज होने देगा? नो। यस और नो? कल्पना, मैं क्या पूछ रहा हूं कि क्या कोई भी एक बार फिर से पूछिए ना। मैं बोल रहा हूं प्रेजेंट, जैसे जो प्रेजेंट के लोग हैं वो क्या चाहेंगे? डेवलपमेंट करना। हम और आप क्या चाहेंगे? डेवलप कर सके। यस और नो? तो डेवलप करने आपको क्या करना पड़ेगा? रिसोर्सेस के यूज को इंक्रीज करना होगा। जब हम रिसोर्सेस को यूज को इंक्रीज करेंगे क्या हम उस रिसोर्सेस को फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सकते हैं? क्या हम उस रिसोर्सेस को फ्यूचर के लिए कंजर्व कर सकते हैं? द आंसर विल बी नो। ठीक है? yes. तो हमने क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाला। और बीच का रास्ता क्या है कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मींस हम लोग रिसोर्सेस को हम लोग क्या करेंगे? द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। जो हमारा नीड्स है उसको हम लोग मीट करेंगे प्रेजेंट में। इट इज क्लियर? कंप्रोमाइज करेंगे द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। In the simple language we can say that we are using the resources. हम लोग क्या करेंगे? रिसोर्सेस को यूज तो करेंगे और साथ ही साथ हम लोग रिसोर्सेस को कंजर्व भी करेंगे। ठीक है? और कंजर्व करके उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रखेंगे भी। ठीक है? लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि हम लोग पहले जो हमारा नीड्स है, जो प्रेजेंट का नीड है, ओके, जो प्रेजेंट का नीड है पहले इस नीड्स को सेटिस्फाई करेंगे। फिर जो रिसोर्सेस बचता है उसको हम लोग क्या करेंगे? फ्यूचर जनरेशन के लिए कंजर्व करेंगे। इट इज क्लियर? yes. तो सिंपल लैंग्वेज में क्या बोला गया कि आप फ्यूचर के लिए रिसोर्सेस को कंजर्व कीजिए विदाउट कंप्रोमाइजिंग योर नीड्स। इसको आप सिंपल लैंग्वेज में क्या बोल सकते हो? कंजर्व द resources for your future generation without compromising with your present needs. It is clear? जो हमारा प्रेजेंट का नीड्स है उससे बिना कंप्रोमाइज किए हुए हम लोग क्या करेंगे? रिसोर्सेज को कंजर्व करेंगे फॉर द फ्यूचर जनरेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके? और सिंपल लैंग्वेज में बोलो, इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट that could sustain in the future
without compromising with the present needs. It is clear? Yes or no? Yes. Yes. Yes sir. तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस सबस्टेनल डेवलपमेंट में क्या हो रहा है, कैरिंग कैपेसिटी देखने को मिल रहा है। कैरिंग कैपेसिटी। अब ये कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है? सपोज करो आपके पास किसी रिसोर्सेस का नीड्स है, आप क्या करोगे, अपने नीड्स को पहले सेटिस्फाई करोगे और आपके नीड्स को सेटिस्फाई करने के बाद जो बचता है उसको आप क्या करोगे, फ्यूचर जनरेशन के लिए कैरी करोगे। यस और नो? Yes. तो पहले आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई किया। आई एम सेइंग योर नीड्स, नॉट योर ग्रीड। आप अपने नीड्स को सेटिस्फाई करोगे, आप अपने ग्रीड को सेटिस्फाई नहीं करोगे, ठीक है? और अपने नीड्स को सेटिस्फाई करके आप क्या करोगे, जो रिसोर्सेज बचता है उसको आप फ्यूचर के लिए कैरी कर दोगे। तो इसी चीज को बोला जाता है कैरिंग कैपेसिटी। तो कहीं ना कहीं सब्सटेनल डेवलपमेंट में भी हमें क्या देखा गया, कैरिंग कैपेसिटी देखा गया। इट इज क्लियर? सपोज करो आप पंखा चला रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है और आप फिर भी फैन को ऑफ करके रखे हुए हो, इसलिए कि इलेक्ट्रिक करंट का प्रोडक्शन कैसे होता है, कोल के बर्निंग से नहीं। आप ये सोच रहे हो कि मैं यहां अगर इलेक्ट्रिक फैन को स्विच ऑफ करके रखूंगा, इससे क्या होगा, हमारा कोल बचेगा नहीं? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। अब आप मुझे बताओ, क्या मैं इस चीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं? क्या मैं इस चीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोल सकते हैं? नो सर। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं फैन को बंद रखा हूं और रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहा हूं फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो इसको हम लोग कभी भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट नीड्स के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं। लेकिन ऐसा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलता। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या बोलता है, आप अपने नीड्स को पहले सेटिस्फाई करो, फिर जो रिसोर्सेस बचता है उसको कैरी करो फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। इट इज क्लियर? यस सर। Yes. तो क्या होगा, जब मानो गर्मी नहीं पड़ती है, जब ज्यादा हॉट डे नहीं होता है, या जब आप कमरे में नहीं होते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, लाइट को ऑफ कर देना चाहिए। यस और नो? यस सर। तो Yes, sir. मतलब वेस्टेज नहीं करना है, सिंपल भाषा में समझो, रिसोर्सेज का वेस्ट नहीं करना है। इफ यू आर नॉट यूजिंग द रिसोर्सेज, उस समय आपका रिसोर्सेज क्या हो, यूज में नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? यस सर। यस सर। अब देखो क्या होता है, कुछ फीचर्स होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ठीक है? और ये फीचर्स क्या है, जो सबसे पहला फीचर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये क्या बोलता है, इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। ठीक है? जीडीपी का फुल फॉर्म होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है? तो जो सबसे पहला फीचर है किसका, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, वो क्या है कि इंक्रीज इन द रियल जीडीपी। अब किसी को पता है जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? जो दूसरा फीचर है उसको हम लोग बोलते हैं सोशल फीचर, सोशल वेलफेयर। ठीक है? और जो तीसरा फीचर है इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ अर्थ। ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देन you must answer there are three features of sustainable development. The first one is increase in the real GDP, second one is social welfare, and the third one is conservation of earth. It is clear?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Now look at increase in the real GDP, okay, and social welfare. These two together makes economic development. Okay, increase in real GDP means increase in real gross domestic product and social welfare. ये दोनों मिलके क्या बनाता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्या बनता बेटा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए किसमें? रियल जीडीपी में. और क्या होना चाहिए? सोशल वेलफेयर होना चाहिए. इट इज क्लियर? Yes, sir. यस सर. और ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को. अब देखो जो तीसरा फीचर है किसका? कंजर्वेशन ऑफ द अर्थ. ठीक है, अगर मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ क्या ऐड कर दूं? कंजर्वेशन ऑफ अर्थ को ऐड कर दूं. क्या ऐड कर दूं बेटा? कंजर्वेशन ऑफ अर्थ को ऐड कर दूं. तो इसी तीनों चीज को मिला के बनता है मेरा सबस्टेबल डेवलपमेंट. क्या बनता है बेटा? सबस्टेबल डेवलपमेंट. आई रिपीट, अगर सिर्फ इंक्रीज इन द रियल जीडीपी की बात करो, जीडीपी मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो किसी भी प्रोडक्ट, किसी टेरिटरी के अंदर, किसी कंट्री के टेरिटरी के अंदर जितना सब्सटेंस प्रोड्यूस किया गया हो उसके मॉनेटरी वैल्यू को हम लोग जीडीपी बोलते हैं. इट इज क्लियर? जिसको हम लोग इकोनॉमिक्स में क्लास 9 में स्टडी करेंगे. इट इज क्लियर? Yes, sir. तो मैं क्या बोला हूं कि